90% of businesses never scale past 5 lakh per month mark. Why? Not because their product sucks or their marketing sucks, but because they make these 3 deadly hidden mistakes which you do not realize. So who am I to tell you all this? मेरा नाम फराज है, as evident from the channel name. I own multiple e-commerce businesses, one of which is by the name of Plor, PLOR. It is my brand, homegrown brand. Started it with 5,000 rupees and scaled it to 20 lakh rupees plus 7 figures in less than 3 years. Per month 20 lakh per month पे scale किया with 37% to 40% ups and downs चलते रहते थे net profits that I used to take home, right? How I did it? What is my method? My method is very simple. I read philosophy, I read psychology, particularly philosophy. I have studied philosophers. I have a channel by the name of Desi Philosopher, India's biggest YouTube channel on Western philosophy in Hindi. I use philosophical methodologies and what philosophers told to apply in business, and I scale businesses. Now I help people scale their businesses. So this is what I do. Now this was an introduction which obviously would improve with the due course of time. यहाँ पे हम लोग आज बात करेंगे what are the main issues, why are most people stuck. If you are doing 1 lakh, 2 lakh rupees in revenue, 3 lakh rupees in revenue, not able to reach 5 lakh or not able to break. If you are at 5 lakh, not able to break the 5 lakh barrier, so you are in fucking deep shit. Let's create shit वाला emoji होता है ना, flies all around. Now let's diagnose your problems, general problems. Why brands die? The most important thing, the clients which I have worked with, the most important problem that I have noticed is low AOV. ये सबसे बड़ी दिक्कत है. This is the biggest problem that I face. Average order value is very low. All these business owners think that selling low ticket products would help them scale. It's all because of the low margin, high volume stuff. But high volume के अपने nuances होते हैं, right? People what they think is they will keep low margin would be low, but volume would be high, right? And with the due course of time, their business becomes a very asset heavy business model. Asset heavy, जिसको वो लोग पीछे नहीं छोड़ सकते हैं. These are the mistakes that I had done too. So you have a low AOV with no upsells, right? There are no upsells. Either you are sticking to one product, you are thinking of nailing that one product, there is no upsell, or your AOV is very low, or it is a combination of both of these things, right? Number one problem ये होती है AOV की. Number two problem is low LTV. LTV. What is LTV? Would somebody take the pains to write that down in the comment section down below? If not, let me tell you what it is. LTV is lifetime value. Lifetime value बनती है by the post-purchase strategy that you implement, right? Customers buy a particular product from you and they don't come back. Why? Because your LTV is not there. Lifetime value of a customer is not there. E-commerce में एक ही रामबाण है. E-commerce में एक ही, there is only one mantra to e-commerce, which is increase your returning customers. If your returning customers are dipping down, then it is not a good thing. हर इंडस्ट्री का अपना होता है. किसी इंडस्ट्री का 19% होता है. Some industries have 17% returning customers over a prolonged period of time. So I had this problem in Plor as well because we were selling bags, right? And the bags were of good quality. Now the problem is, if one is selling bags, तो सबसे बड़ी problem ये होती है, a person purchases a bag, then अच्छा product है and then they are good. Tupperware is going down because of this issue. Their biggest business asset was कि they sell plastic which is very good. I mean, जो कि airtight रहता है, जो कि this was the problem at which Tupperware was facing. Their product was very good. They nailed their product. Solid plastic products that they provide their audience with, airtight, waterproof, not waterproof but watertight, and it failed miserably. Why? Tupperware तो अच्छा गया, but people who purchased the product वो वापस नहीं आए. Because they had what they wanted. And Indian mentality is कि भाई एक बार जो मिल गया फिर उसी से काम चलाओ जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाता. We do not have the first world वेस्टर्न माइंडसेट कि भाई चीज़ों को रिफर्बिश बार बार करवाते रहो या रिफ्रेश करते रहो चीज़ों को. एक बार ले लिया. एंड दिस वाज द प्रॉब्लम विद अस. बैग ले लिया नेक्स्ट सीजन में लेंगे. तो बीच में हम क्या करें? सो दैट इज़ वेयर
we focused on LTV, how to increase the lifetime value so that we can increase the returning customers. And what we did was very simple. We saw that our audience who are purchasing the bag packs, we did a psychographic research over a span of 1 to 2 months. We saw that our audience is inclined towards, their core is inclined towards what? उनको चाहिए books. They are into books, they are into Korean aesthetics. वो लोग are interested into all these kind of stuff which you know, ये जो आजकल K-pop चीज़ों ने वायरल कर दिए हैं, Korean aesthetics होती हैं, you know, all these kind of light pastel Pinteresty type vibe. हमने समझ गया ठीक है. If they are interested in this bag, they are college students, right? They would be interested in what? Stationery as well. They would be interested in art supplies. They would be interested in notebooks. That is where we launched that. अभी भी if you go at Plore, right? Plore के ऊपर जाओ, you check out, right? You check out and you will see we have added those stationery items. If someone is going out towards the checkout करता है वो checkout करने के process में है, तो हम उसको एक pitch करते हैं कि भाई buy this with this you will get this much off, या buy this with this you will get this free. So we are increasing the AOV plus we are increasing the LTV, which is lifetime value of a customer. क्यों? बैग ले लिया, अब बैग लेने के बाद वो वापस आएगा, वो स्टेशनरी लेगा, एक इम्पल्सिव बाइंग स्प्री चली जाएगी इन लोगों की, क्योंकि दीज पीपल आर इम्पल्सिव बायर्स. देयर पेरेंट्स हैव मनी और दीज पीपल हैव मनी, थोड़ा बहुत जो कॉलेज उससे मिलता है, स्टेशनरीज आर इन द बॉल पार्क, सही प्राइसिंग उसकी हुई हुई है. नाउ दे विल कीप purchasing this time and again, आते रहेंगे. So this is how we increased the LTV. Not only this, the post purchase strategy has to be very good. ठीक है? What is your post purchase strategy? जैसे अभी Plore के ऊपर we are shifting to a different WhatsApp marketing agency. पहले दूसरी थी, but सबके पास जाते थे. You know, they were triggers कि अब जाएगा वो चेकआउट करके मतलब चेकआउट नहीं किया, it's an abandoned cart. After 15 minutes they will get a reply, right? कि you have left these many things in carts. अभी हम उनको 10% दे रहे थे, now we'll give them 12% on the abandoned checkout. तो उनको लगेगा ले लो, फिर जाएगा 10 दिन बाद, अगर 10 दिन तक नहीं लेते अब हम उसको थोड़ा सा क्रैंक करके 15% ले लेंगे. ठीक है, कोई बात नहीं. Our profit margins will go down, but the LTV is increasing. This is where the money is made. It's not कि एक बार प्रोडक्ट ले लिया 1200 रुपये का 1500 रुपये का. It's how many times they are purchasing. What is the lifetime value over a quarter? हम लोग यू नो क्वार्टर बेसिस पे देखते थे, 6 मंथ्स बेसिस पे देखते हैं, हाफ ईयरली बेसिस पे देखते हैं, 6 मंथ में उनकी क्या वैल्यू है. अगर वो 6 महीने में 6 मंथ्स में यू नो लेट्स से दे आर कमिंग बैक टू द ब्रांड 5 टाइम्स, राइट? एंड सिंस वी हैव केप्ट 699 599 699 कुछ है कि ₹699 ऐड करोगे तभी तुम्हें फ्री डिलीवरी मिलेगी. तो लेट्स से 700 इंटू 5, तो दे आर स्पेंडिंग ₹3500 विद अस ऑन अ 6 मंथ बेसिस. रादर अगर हमारे पास कोई पोस्ट परचेज स्ट्रैटेजी नहीं होती तो ये 1100 में निबट गए होते एक ही चीज़ लेके, या ज़्यादा 1300 में निबट गए होते. वी हैव इंक्रीज दिस 2 times, more than 2 times. So how are we doing this? We are doing this with the post purchase strategy to increase the lifetime value. If you are stuck, then your post purchase strategy is shitty or you have not worked on that. क्योंकि कस्टमर वापस नहीं आ रहे हैं, तो स्टडी डैट, राइट? शॉपिफाई पे बहुत अच्छे से रहता है वो सब डेटा, स्टडी डैट, राइट? द अदर थिंग वुड बी विच आई हैव सीन बिजनेस ओनर्स मेक, couple of my friends have also made this mistake, which is over reliance on ads. You think ads is the only tactic that you can use to leverage your brand, right? And what they do is कि उनकी कोई ऑर्गेनिक स्ट्रैटेजी नहीं होती, राइट? अब एड्स के ऊपर लोग पैसा खर्च कर रहे हैं. यू ऑल्सो नो इफ यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द एड स्पेंड, द कैक गोज अप, राइट? विच इज द कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट गोज अप एंड योर प्रॉफिट्स कम डाउन. वाई? बिकॉज रोआस कम आ जाता है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड स्टार्ट डिक्रीजिंग. रोआस धीरे धीरे आने. अब ऐसा तो नहीं है इफ यू आर यू नो रनिंग अ वीकली बजट ऑफ लेट्स से मंथली बजट ऑफ 1 लाख रुपीज़, ठीक है? तो मैं रोआस आ रहा है 13x का, तो यू विल बी लाइक अगर मैं 1 लाख रन करके 13x का रोएक्स ला सकता हूँ विच इज 13 लाख, तो मैं 1 करोड़ रन करूँगा तो मेरे को 13 करोड़ मिलेंगे. तो ऐसे काम नहीं करता ना बिजनेस. वो अलग बात है कि मैन्युफैक्चरिंग हो रही है नहीं हो रही है, एक्वायरिंग प्रोडक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या ड्रॉप शिपिंग में अगर तुम हो तो वो वहाँ से शिप कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, मीटिंग द डिमांड्स. बट दिस इज द प्रॉब्लम, राइट? सो डू नॉट ऑलवेज
rely on ads. We did organic strategy as well. Influencer marketing करना कैसे किया कैसे नहीं किया, that is a altogether different thing, but we used to rely on organic, and I powered my intuition and my knowledge of running my YouTube channel, being in the content industry since the past 8 years. तो मेरे को knowledge हो गया कि how to pivot, how to attract these people are attracted via this, via that, so we started curating organic content, right? अब ऑर्गेनिक कंटेंट भी ये नहीं कि तुम वायरल जा रहे हो, 1 मिलियन व्यूज आ रहे हैं एंड दोज आर नॉट कन्वर्टिंग. ऑर्गेनिक नीड्स टू बी कन्वर्टिंग. ऑर्गेनिक, अगर इफ यू आर यूजिंग ऑर्गेनिक कंटेंट, it needs to be a converting metric. Let me take the blue marker, right? So there is a difference between vanity and converting metric. You might see a reel, you might see an advert, you might see an organic content which is clocking millions of views, hundreds of thousands of likes, but हो सकता है उनके backend पे कुछ नहीं है. We were at that stage too with Plor. I believe कितना जल्दी हुआ था भाई हमारा सोशल मीडिया के ऊपर, प्लॉर के ऊपर वो फॉलोअर्स स्टार्टिंग में कितना हुआ था, शायद 1 से 2 वीक में हो गए थे, 1 वीक में हो गए थे 2 to 10,000, है ना? हाँ, वी क्लॉक्ड for the initial 10,000 followers in 1 week or 10 days. ठीक है, every day we were getting 1,000 followers, but there were no sales at the back end, or close to very less sales, because it was spread out. The CTAs were not clear. So I mean, I have worked with clients or students who were at this stage. So I worked with this couple and they were at this stage. They were showing कि भाई इतना हमारा ऑर्गेनिक हो रहा है लेकिन क्यों नहीं कोई कन्वर्ट हो पा रहा है, what is the problem? And I had to pivot their whole content strategy. Views drop हो गए, obviously views drop by almost 38 to I believe बहुत ज़्यादा ड्रॉप हुए थे, 38% इनिशियली ड्रॉप हुए, बाद में तो 55% तक ड्रॉप हो गए थे. बट दे वर हैप्पी. वाई? बिकॉज देयर सेल्स इंक्रीज बाय 31%. नेक्स्ट मंथ तक दे वर इंक्रीज बाय 31%. दे वर हैप्पी. विन विन सिचुएशन. कोई बात नहीं, व्यूज़ नहीं चाहिए, वैनिटी मैट्रिक्स का क्या करेंगे व्हेन नो वन इज कन्वर्टिंग. और फालतू लोग भरते जा रहे थे जिनकी परचेजिंग पावर नहीं थी. सो यू नीड टू कीप एवरीथिंग इन माइंड, राइट? यू नीड टू हैव एवरीथिंग इन माइंड. टेक दिस चैनल फॉर एग्जाम्पल. I was posting content related to mindset and stuff. I realized कि ये views तो ला रहा है, conversion भी ला रहा है, but quality conversion नहीं ला रहा है, because I want to keep my pricing very premium, क्योंकि I provide premium value. I have learned everything over these years, but people do not have this purchasing power to give me what I expect. So I had to pivot my content to e-commerce on socials as well. वैसे तो all the business owners, I was running a different agency through which they were coming to me, but now I want to test the power of organic on this particular business model. So I did pivot my content. So you need to pivot whenever you see that the purchasing power of your customer is not good. You have to do a demographic or psychographic analysis. तो मैं समझ में आए कि the purchasing power is not good, or they are not able to spend as much, or their LTV is very low, or their AOV is not setting in the ballpark, which means we had to manipulate the pricing many a times with different permutation and combinations to come to a particular figure wherein the audience has the audacity to and the audacity to buy this product. एक sweet spot ढूंढना था, and that was the difficult part. We tried all sorts of pricing. 3,000 रुपीज़ रखा, 3,500 भी बैग का प्राइस रखा था, हमने 800 में भी बेचा था. वी वर एट लॉस. 3,500 में ऑर्डर्स आ रहे थे बट इतने ओवरवेलमिंग नहीं थे कि मज़ा आ जाए. तो दिस वॉज द 1,500 वॉज अ बॉल पार्क. क्यों? क्योंकि उनको प्रीमियम भी चाहिए लेकिन बहुत महंगा भी पे नहीं कर सकते. कॉलेज स्टूडेंट्स है, पॉकेट मनी मिलती है. हमने रखा कि प्रीमियम प्रोडक्ट मिलेगा लेकिन बीच में रहेगा. अब आगे आगे एज यू गो, as I go proceed करेंगे over these time frames, so I'll tell you about the nuances and the setbacks that we had to face with the particular manufacturing और scalability में कहाँ issues आए थे. That is a different thing and what you guys can learn. But this is it, lifetime value. Now the third thing is, okay, so we were at the bad cash flow management, we over reliance on ads. So there were 3 things. Number 1 was poor AOV, right? Poor AOV, number 1. दूसरा was LTV, lifetime value, and तीसरा was bad cash flow. You are over reliant on advertisement and neglect organic, and organic
हैज़ अ ब्यूटिफुल पावर इन ई कॉमर्स. इफ़ यू डू ऑर्गेनिक सही स्ट्रक्चर के साथ, सही गाइडेंस के साथ, सही हुक्स, मिड रोल्स एंड CTS के साथ, सही टारगेटिंग के साथ, देन तुम्हें मोस्ट प्रॉब्ली एड्स का तुम्हें खुद लगेगा कि एड्स आर नॉट नेसेसरी, राइट? लाइक स्टिल इफ आर, जैसे हमारा कार्ड अटक जाता है या देर इज सम इशू इन द फेसबुक पेमेंट गेटवे, या कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, क्रेडिट लिमिट की कुछ इशू हो जाती है, या कुछ एरर आ जाता है इन फेसबुक एड, एक हफ्ते तक एड्स नहीं चलते हैं, बट स्टिल वी आर गेटिंग इन सेल्स, स्टिल वी गेट सेल्स थ्रू ऑर्गेनिक. हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज वी नेल्ड द ऑर्गेनिक, वी चेंज एवरीथिंग. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? नाउ what you can do, so I told you what you can do, increase AOE. So add post purchase upsells, you can add. So these are my notes, that's why I'm looking down, so don't get all jarred up. ठीक है, वन क्लिक अपसेल करो, जॉबप्लोर को स्टडी करो, मेरे वेबसाइट को स्टडी करो, मैंने क्या किया हुआ है. गो देयर, सी द कस्टमर जर्नी. पीपल आर इम्पल्सिव बायर्स, सो मेरा थिंग इज नॉट वेरी बिग कि मैं उनको वार्म करूंगा, मैं उनको नर्चर करूंगा, मैं उनको ये करूंगा, मैं उनको वो करूंगा, मैं उनको वहाँ भेजूंगा, मैं उनको ये दूंगा, मैं उनको ऐसे बताऊंगा, मैं उनको ब्लॉग पढ़वाऊंगा, फिर मैं उनको बोलूंगा मेरा प्रोडक्ट ले लो. इट्स एन इम्पल्स परचेजिंग. इंडियन पीपल आर वेरी लेजी, नंबर 1. नंबर 2, दे आर इम्पल्सिव बायर्स. अगर उन्हें कुछ पसंद आया वो ले लेंगे. सोचने वाले सोचेंगे महंगा प्रोडक्ट होगा बट ले लेंगे. 80 रुपये का, 90 रुपये का एक पेन ही तो है, या 150 रुपये की एक नोटबुक ही तो है, ले लो, ऐड कर लो, हमें इतना ऑफ मिल रहा है, हमें उतना ऑफ मिल रहा है. जो स्विगी जोमेटो ये लोग करते हैं, ब्लिंकिट करते हैं, दैट इज़ व्हाट वी डिड, राइट? सो द थर्ड पार्टी ऐप विच वी हैव पार्टनर्ड विद, वो हेल्प करते हैं ये करवाने में. सो सी द पोस्ट परचेज किस तरीके से जाता है, राइट? बंडल कराओ, प्रोडक्ट्स को बंडल करो, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है. और बेचो. अब लेट्स टेक दी वन क्लिक अपसेल इन माई केस, राइट? माई सिस्टम इज वेरी ईजी. This is what my lead nurture is. If you want to work with me, if you are an e-commerce business owner, want to work with me, by DM karo, I want to work with you on an e-commerce, I am doing this is with the information, my team will reach out and we'll book a call and we'll start working. As simple as that. कोई उसमें हिडन चीज़ नहीं भाई. पैसा है बैंक में तभी हो, बिकॉज माई शिट इज प्रीमियम. आई टेक प्रीमियम चार्जेस और मैं प्रीमियम गारंटीज भी करता हूँ, राइट? सो दिस इज वॉट यू वन क्लिक अपसेल इज, कि मेरा प्रोडक्ट ये है, ये है, ये है, ये है, दिस इज वॉट यू विल गेट, दिस इज वॉट द एंड प्रोडक्ट इज. एंड माई थिंग इज सिंपल. 1 महीने काम करो, जो स्ट्रैटेजीज बताई नहीं काम करती, मैं तुम्हारे साथ अगले 2 महीने फ्री में काम करूंगा. आई विल नॉट चार्ज एनीथिंग, आई विल मेंटर यू फॉर फकिंग फ्री. एज सिंपल एज दैट. सो दिस इज माई डील, दिस इज वॉट माई डील इज. नाउ द थिंग इज, अगर मैं इसको लैंडिंग पेज पे लेके जाता, जो कि फ्यूचर में करना पड़ सकता है, अगर मैं एड्स वगैरह चलाऊँ, लैंडिंग पेज पे लेके जाता, उनको बोलता एक फ्री कोर्स देखो, उनको मैं नर्चर करता, उनको लीड मैग्नेट्स देता, उनको 10 तरीके की चीज़ें देता, तो इट वुड बी ओवरवेलमिंग. सो व्हाट पीपल थिंक इज कि भाई पोस्ट परचेज तो होना चाहिए, बट ट्राई टू कन्वर्ट देम इन द फर्स्ट सेल स्टेप. अगर तुम कर सकते हो, वो भी बढ़वाओ. लोग क्या करते हैं, अरे अभी ये प्रोडक्ट ले लो, फिर उनको मेल डलेगा, फिर मेल में या व्हाट्सएप मार्केटिंग के थ्रू उनको दिखेगा कि भाई ये प्रोडक्ट भी हम ले सकते थे. Nobody would fucking care to buy your product because they are lazy as fuck. वो ये कहेंगे, उसी वक्त दिखा देते ना यार, अब मैं अलग से मंगाऊँ, मतलब मैं फिर 500 रुपये की चीज़ मंगाऊँ जिससे, या 600 रुपये की चीज़ मंगाऊँ, या जो भी तुम्हारा ऑफर है जिससे कि अगेन मेरे को फ्री शिपिंग मिले. शिपिंग मैं क्यों दूंगा? शिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, राइट? सो दैट इज़ वॉट द थिंग इज. यहीं पर तुम्हें कन्वर्ट करना है. एंड दिस वॉज अ प्रॉब्लम, राइट? हमारी स्टेशनरी नहीं अलग से निकल रही थी, हमने उसी में ऐड कर दिया. निकल रही थी, उस लेवल पे नहीं निकल रही थी जो हमने सोचा था. वी एडेड इट हियर इन द सेम प्रोसेस. जब चेकआउट हो रहा है, लो और निकलो. एज सिंपल एज दैट, राइट? नाउ टू बूस्ट LTV, सॉलिड ईमेल स्ट्रैटेजी बनाओ, व्हाट्सएप फ्लो बनाओ. यू नो देयर आर मेनी शॉपिफाई एप्लीकेशंस दैट यू गो इनटू, बट उनका देख लेना, उनके बहुत लोग हैं ना, स्टैट्स बहुत मिसलीडिंग होते हैं, बट एक बार चेक कर लेना जब भी करोगे. और सब्सक्रिप्शन ऑफर्स रख सकते हो. लाइक वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ वारंटी ऑन द बैग्स, राइट? क्योंकि बैग्स में प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं से जिप कभी कभार फट सकती है, कभी जिपर में प्रॉब्लम हो सकती है, कपड़ा फट सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट? तो हम एक वारंटी सिस्टम रखेंगे. अब आप उसको सब्सक्रिप्शन बेस्ड मॉडल भी रख सकते हो. अब हम वारंटी रखेंगे, 500 रुपये दो, 6 महीने की वारंटी आपको मिल जाएगी बैग के ऊपर, या 400 रुपये दो, 6 महीने की वारंटी मिल जाएगी. इफ़ यू आर अ फूड बेवरेज इन द FMCG इंडस्ट्री, यू कैन गिव अ वारंटी. ये सब्सक्रिप्शन रेट ऐसे करो, जैसे
since I am building another, I am going into e-commerce. मैं अभी मलेशिया गया था recently. If you see by the vlogs that I put out on this channel, तो मलेशिया में we had to meet some Chinese, investors and some manufacturers who are into FMCG, cold beverages or energy drink brand. क्योंकि I'll be launching an energy drink brand very soon. तो we had a conversation with them, the tactics. So we are developing that part as well. ठीक है, we would be launching that very soon. So this is what you do. This is how you do it, right? So create everything solid, right? You can create a subscription based model, lock in recurring revenue कर सकते हो. When it comes to the MRR, which is monthly recurring revenue, all boils down to MRR. एक महीने आपने 5 लाख कर लिया, ओ भाई खुशी हो गई, नेक्स्ट मंथ वापस आप 1 लाख पे आ गए. फ्लोर के साथ भी हुआ था, 7 लाख कर लिया, फिर 3 लाख पे आ गए, फिर 6 लाख कर लिया, फिर 4 लाख पे आ गए. तो वो जो MRR है उसको एटलीस्ट 4 मंथ्स तक या 3 मंथ्स तक, 4 तो बहुत ज़्यादा हो गया, 3 मंथ्स तक स्टेबल रखने की कोशिश करो. देन यू कैन से यू हैव क्रैक्ड इट, राइट. कैश फ्लो ऑप्टिमाइजेशन के लिए बैलेंस करो पेड एड्स को, ऑर्गेनिक ट्रैफिक बैलेंस, फोकस ऑन इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा, एफिलिएट मार्केटिंग पे भी कोशिश कर सकते हो. इन्फ्लुएंसर भी चल रहा है, इन्फ्लुएंसर्स हैव वेरी ब्यूटीफुल पावर. यू गिव अ प्रोडक्ट, they give a reel, you can use those reels as ads, as organic, as anything, as a website video as well. तो कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, right? And try to maintain a 30 to 40% profit margins. क्योंकि मेरा ये मानना है ई कॉमर्स में if you are not at least अपर एंड पे तो कहीं पे भी जा सकता है, एटलीस्ट इफ़ यू आर नॉट मेकिंग 30 to 40% प्रॉफिट मार्जिन, मतलब लेट्स से 40% बॉल पार्क में नहीं आ रहा, देन इट्स ए प्रॉब्लम, देन इट्स अ बिग इशू. तुम घर जाके कुछ लेके नहीं जा सकते, घर कुछ लेके नहीं जा सकते. दैट इज़ वाई प्लॉर बैड डेज पे 36% पे रहता था, गुड डेज पे 38-39% पे रहता था. 40% हमने कभी टच किया था, वो भी एक यूटोपियन ड्रीम थी, बट it was between 36 and 39%. So that is what you do, right? So now I'll give you an execution protocol, what you need to do today. Aaj, if you are an e-commerce business owner, right? Or if you're just starting or you're doing 50,000, 1 lakh rupees, whatever, right? You can just fix your checkout. You can add upsell. You can create order bumps. कैसे order को bump करवाना, upsell add कर सकते हो. If you do not have a post purchase, email setup, Shopify पे फ्री में होता है, वो भी देख सकते हो. 10,000 emails तक शायद फ्री है, उसके बाद दे चार्ज $0.01 फॉर ईच ईमेल या 0.001, एक बार चेक कर लेना. और यू कैन सेट अप व्हाट्सएप फ्लो और स्टार्ट इन्फ्लुएंसर सीडिंग, विच इज़ इन्फ्लुएंसर्स को ढूंढना शुरू करो. गो फाइंड माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स. बड़े इन्फ्लुएंसर्स को नहीं लेना, जितना बड़ा इन्फ्लुएंसर होता है उतना, जब तक वो मोस्टली सेन, आशीष चंचलानी, भुवन बाम, कैरी मिनाटी जैसे बड़े इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, तब तक दे डू नॉट, तब तक है पावर. उसके अलावा जो दिखते हैं ना मिड टीयर वाले, 1 मिलियन है, मेरे तो 3 लाख फॉलोअर हैं, 4 लाख हैं, परचेजिंग पावर नहीं है, फालतू ऑडियंस ज़्यादा जमा हुई हुई है. रादर 5,000 फॉलोअर, 10,000 फॉलोअर, बिकॉज दे हैव अ बेटर इंटरेक्शन विद देयर ऑडियंस. Let's say you are an influencer, you start a brand, let me see if the recording is still up or not, right? Okay, you start a brand, you are an influencer. Now you start influencing people. People are DMing you, you are having a conversation because you need to create a community. Cut to 2 लाख फॉलोअर पे हो, इतने DMs आ रहे हैं, सबको नहीं हैंडल कर सकते ना. तो जिसके साथ 1-on-1 टच है इन्फ्लुएंसर का कस्टमर के साथ, बिकॉज फ्लोर पे यही हुआ था. देयर वाज एन इन्फ्लुएंसर स्टार्टिंग में, जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट फिट ठीक से हमको समझ ही रहे थे उस वक्त, तो वी रीच आउट टू एन इन्फ्लुएंसर हु वाज अ मदर. जो होते हैं ना ममाज अकाउंट टाइप होता है, अपने बच्चे के बारे में, बच्चे से रिलेटेड टिप्स देते हैं होते हैं. तो वी गेव हर आवर प्रोडक्ट. आई मीन शी वाज नॉट एन इन्फ्लुएंसर बट शी बॉट आवर प्रोडक्ट. सो शी पोस्टेड अ रिव्यू. हमने कहा आपको हमारा प्रोडक्ट प्रमोट करना है, उसने कहा ठीक है. हमको उस वक्त तो ये था सेल्स लानी है. तो वी वेर इन द हेयर एक्सेसरीज नीच, बैग नहीं था उस वक्त. तो लिटरली जितने DMs उसको आ रहे थे प्रोडक्ट की इंक्वायरी के लिए, वो खुद मैनेज कर रही थी, मतलब अपने अकाउंट पे कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, मैंने लिया, ये वो. सो दिस इज द पावर. एंड शी हैड अराउंड 8,000 और 11,000 फॉलोअर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मैं बात कर रहा हूँ 2021 की, 21 एंड की बात कर रहा हूँ या 22 की स्टार्टिंग की बात कर रहा हूँ. सो दिस इज वॉट इट इज़, राइट. 20 माइक्रो इन्फ्लुएंसर्स को फिगर आउट करो, फ्री प्रोडक्ट दो, बोलो हमें एक रील देना, आप उसमें अगर बोल सकते हो तो बोलो एक स्टोरी देना. और इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग पे एक अलग से वीडियो बनाएंगे, कैसे वी हैव बीन सक्सेसफुल. मेरा प्लॉर अगेन, गो टू इंस्टाग्राम, ऊपर से नीचे स्क्रॉल कर जाओ, भरा पड़ा है, राइट. अब तो हमारे खुद के इन हाउस शूट्स एंड आउटडोर शूट्स होते हैं, उसकी टीम पूरी अलग है, बट वी यूज टू डू इट.
एंड आई यूज टू डू द शूट्स बहुत केसेज में, राइट. वी इवन कॉल्ड इन्फ्लुएंसर्स टू आवर स्टूडियो. ये जो स्टूडियो है, दिस इज वन रूम, देर इज अनदर रूम, द वैनिटी रूम, एंड देन देर इज द स्टूडियो रूम, विच इज़ जहाँ पे पूरा शूट्स वगैरह होता है विद द बैकड्रॉप, वाइट बैकड्रॉप, वो पेपर वाला जो भी होता है, राइट. सो दिस इज वॉट इट इज. सो दिस इज माई एग्जीक्यूशन प्रोटोकॉल टू यू. सबसे पहले फिक्स योर चेकआउट. नंबर 2, सेटअप अ पोस्ट परचेज ईमेल व्हाट्सएप फ्लो. नंबर 3, स्टार्ट इन्फ्लुएंसर सीडिंग. डू दिस, राइट. इन द मीनवाइल, join the WhatsApp community, or not WhatsApp community, WhatsApp channel. Link is in the description and comments. वहाँ जाओ, join करो. I'll be launching a community very soon on school. I've been working on that and I fixed the niches. I fixed some stuff, और I'm working hard because वो paid है. If I start a community, I'll have to pay $100 per month from my pocket. लोग join करें नहीं करें, तब भी मेरे को चलाना है उसको. तो it would be for people like you who are into e-commerce, who are doing some revenue in e-commerce, want to expand, right? और बहुत solid pricing रखी है. It is an affordable pricing from my end. और वहाँ पे join करो. You can join in. We will have weekly sessions. We'll have 2 sessions on a weekly basis, right? So it would be obviously एक subscription based model पे रहेगा, but early bird offer रहेगा for the first 20 people who will join in. It would be a fixed rate. मतलब एक बार आप लेट से इस पर्टिकुलर रेट पे ज्वाइन कर गए तो हर मंथ वही रेट आप पे करके रह सकते हो. जैसे ही 20 लोग पूरे हो जाएंगे उसके बाद द रेट्स वुड इंक्रीज, स्काई रॉकेट द रेट्स, राइट. सो ज्वाइन दैट कम्युनिटी इफ यू वांट टू स्केल योर ब्रांड. इफ यू आर एट 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, यू वांट टू स्केल टू 10 lakh, 20 lakh और बियॉन्ड, तो यू कैन ज्वाइन दैट विथ प्रॉफिटेबिलिटी. प्रॉफिटेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. कागज़ पे रेवेन्यू दिखा के देयर इज नो पॉइंट कि यू आर डूइंग वेरी बिग बिजनेस, इतना पैसा है और आई विल शो दिस टू इन्वेस्टर्स एंड टेक एन एग्जिट, इतने करोड़ों घर ले जाऊंगा. कोई फ़ायदा नहीं. बेबी स्टेप्स लेते हैं, राइट. पहले स्केल करो. इंटरेस्टेड हो, कम्युनिटी ज्वाइन कर लो बहुत जल्द. आई विल बी अनाउंसिंग अबाउट द नॉट कम्युनिटी, चैनल ज्वाइन कर लो. आई विल बी अनाउंसिंग अबाउट द कम्युनिटी वेरी सून. ठीक है.